اللہ جل مجدہ کا شکر و احسان، اس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں اس کے حضور حاضر ہیں، اور دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی اپنے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین کے بعد رشتہ داروں کا مقام آتا ہے۔ والدین کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھر آگے فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی پڑوسی کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور دوست کے ساتھ، عام دوست کے ساتھ۔ دیکھ لیں میرا اللہ کس حد تک رہنمائی فرماتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دوست بنانا بھی جائز ہے، اس کے ساتھ دوستی نبھانا بھی جائز ہے، اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا بھی جائز ہے، بلکہ جائز نہیں، حکم ہے، فرض ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بلا شبہ اللہ متکبر اور اکڑے ہوئے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ گویا رشتہ داروں سے، یہ رشتہ داروں کا ذکر، پڑوسیوں کا ذکر، یتیموں مسکینوں کا ذکر، والدین کا ذکر کرنے کے بعد اینڈ کہاں کیا کہ اللہ متکبر کو پسند، متکبر ہی رشتوں کو توڑتا ہے۔ ہم چوما دیگرے نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں، جب یہ آ جاتا ہے نا میرے جیسا کوئی نہیں، پھر کسی کو اہمیت نہیں دیتا، پھر سب ٹوٹتے ہیں، رشتہ دار بھی، پڑوسی بھی، دوست بھی، سارے پھر ختم ہوتے ہیں۔ یہ میں جب آ جائے تو میں تکبر پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے۔ تو عبادت خدا کے بعد فرمایا شرک نہیں کرنا، اس کے بعد تیسرا مقام فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور چوتھا نام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد میں پارہ نمبر 26 ہے وسلم، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تمہیں اقتدار مل جائے تو تم سے توقع یہی ہے، یہ منافقین کے ٹولے سے خطاب ہے، کہ تم تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلاؤ۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو امانت میں خیانت کرتا ہے، جس نشانیاں زو نے بتائیں، وعدہ خلاف ہوتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو حکومت مل جائے، ہمارے جو حکمرانوں میں تو یہ نہیں ہے نا مسائل ہے، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، نہ وہ زمین میں فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو قرآن نے کہا کہ اگر ایسے لوگوں کو حکومت مل جائے، جو منافق ہے، حکومت مل گئی، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو توڑتے ہیں منافق۔
अगर हुकूमत मिल जाए तो फसाद फैलाते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, ये नहीं, यहां ये नहीं है कि हुक्मरान ही रिश्तों को तोड़ते हैं, ये जनरल बात आगे आ गई ना, कि मुनाफिक टोला हुकूमत मिल जाए, इक्तदार में आ जाए, कोई मनसब मिल जाए तो फसाद फैलाता है। और दूसरा काम इसका ये है मुनाफिकों का कि वो रिश्तों को तोड़ता है, क्योंकि तकब्बर जो आ गया, अब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। अब इसका अंजाम सुने क्या है, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है। यानी दो तबकात पर, फसादी हुक्मरानों पर लानत की कुरान ने, और दूसरा तबका जो रिश्तों से ताल्लुक तोड़ता है, कता ताल्लुक ही करता है, कुरान ने, अल्लाह ने लानत फरमाई। और आगे सुने, फ़असम्महुम, उन पर लानत है, वो बहरे, असम्महुम, वो बहरे हूं, यानी उनके कानों को बहरा कर दिया है, वो बहरे हैं, लानती हैं, बहरे हैं, व आमा, अंधे हैं, अबसारहुम, अपनी बसारत के हिसाब से। तीन चीजें बयान, लानती हैं, बहरे हैं और अंधे हैं। कौन? जो हुक्मरान फसाद फैलाते हैं और जो आम लोग रिश्तों को तोड़ते हैं, वो अंधे हैं, लानती हैं, बहरे हैं। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबि अक़फ़ालुहा, कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ गए हैं। अंदाज देखिए मेरे अल्लाह का, तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ गए हैं, यानी गौर व फिक्र से काम ही नहीं लेते, इशारों को समझते ही नहीं हो, बात को सुनते ही नहीं हो, अंधे हो, लानती हो, बहरे हो, तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ गए हैं। ये मजमून तो पीछे वही चला आ रहा है ना, कि जो फसाद फैलाते हैं और जो रिश्तों को तोड़ते हैं। और फिर फरमाया, बेशक जो लोग पीठ फेर कर पीछे लौट गए, यानी कुफर की तरफ, दीन को छोड़ दिया, उसके बाद उन पर हिदायत वाज़ेह हो चुकी, जिन उनको पता चल गया पहले कि शैतान सव्वल लहुम अमला लहुम, कि शैतान उन्हें कुफर अच्छा करके दिखाता है और बड़ी उम्मीदें दिलाता है, बड़ी उम्मीदें दिलाता है। तो अब आज की हमारे गुफ्तगू के हवाले से जो चीज है वो ये है कि जो रिश्तों को तोड़ता है उस पर खुदा की लानत है। आप अंदाजा करें, लानती शख्स भी जन्नत में जाएगा जिस पर अल्लाह लानत डाले, और हम तो नमाज रोजे के बाद बाकी चीजों से हवाले से बड़ी जिम्मा है, जन्नती पक्के। कोई शक ही नहीं जन्नती होने में। सारा कुछ करने के बावजूद अगर रिश्तेदारों को इग्नोर किया तो नहीं, ला यदखुल जन्ना कातिउर रहम, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यदखुल जन्ना, जन्नत में नहीं दाखिल होगा। अब रिश्ते कौन से हैं? वालिदैन है पहला रिश्ता, बल्कि वालिदैन को तो रिश्तों में नहीं रखा, उनका अलग जिक्र किया। हालांकि रिश्ता तो वह है ना, लेकिन उसका अलग जिक्र किया ताकि उसकी अहमियत सानवी हैसियत इख्तियार न कर जाए, उसकी अहमियत अव्वलीन हैसियत रखे। हाँ जी। और फिर दूसरे नंबर पर रिश्तेदारों, वासिफ अली वासिफ का एक जुमला है बहुत प्यारा, वो कहता है कि वालिदैन की वफात पा जाने के बाद उनकी औलाद से प्यार करो। अब उनकी औलाद कौन बनती है? बहन भाई से प्यार करो, उनकी रूह खुश होगी। हमारी जो पहली लड़ाई होती है वो बहन भाइयों से ही होती है, वालिदैन के बाद। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि छोटे भाई के लिए बड़ा भाई बाप की हैसियत रखता है, बाप की हैसियत रखता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अत-तरगीब व तरगीब में इमाम हाफिज मुनज़री अलैहिर्रहमा इस रवायत को नकल करते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रवायत है, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे, दफ़अतन हुज़ूर ने फरमाया कि वो शख्स यहां से चला जाए जिसकी अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक टूटा हुआ है,
वो चला जाए। सारे परेशान कहते हैं। एक जवान उठा, वो घर गया, थोड़ी देर के बाद वापस आया। हमने उससे पूछा, भाई खैरियत थी? उसने कहा, मेरा ताल्लुक अपनी खाला से मुनक़ते था, मैं उनको मनाने गया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, खैरियत इतनी बड़ी वईद इस पर? फरमाया, जिस मजलिस में एक भी काते रहम हो, काते रहम कहते हैं, रहम कहते हैं रिश्ता, काते तोड़ने वाला, रिश्ते को तोड़ने वाला एक भी शख्स हो, उस मजलिस पर खुदा की रहमत नहीं आ सकती। हमारा पूरा घराना ही काते रहम होता है, मियां बीवी काते रहम है, तो बरकत कहां से आए? ये गिले हैं, सीरियस यही है। हमारे घर में बरकत नहीं, सुकून नहीं, रहमत नहीं, फसाद है। ये वजह हर रोज जो हम बर्दाश्त नहीं ना करते, हर वक्त तो शैतान हावी होता है। तो मियां बीवी की लड़ाई बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। ये गुनाहों की जड़ है मियां बीवी की लड़ाई। जब मियां बीवी आपस में सुलह के साथ नहीं रखते, तो बाकी रिश्तेदारों को उन्होंने कैसे संभालना है? सवाल ही नहीं पैदा होता। संभाल सके, नहीं संभालते। फिर जिस घर में मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, उनके किसी के रिश्तेदार के साथ ताल्लुक ठीक नहीं होते। दो ही तो रिश्ते हैं, भाई तो मियां के और बीवी के। जब आपस में नहीं बनेगी, बीवी मियां के रिश्तों को नहीं अच्छा समझेगी और मियां बीवी के रिश्तों को अच्छा, तो फिर कहां गई रिश्तेदारी? खत्म हो गई ना। तो उसके लिए रिश्तों को जोड़ने के लिए मियां बीवी को आपस में जुड़ना होगा। वो उसने कहा ना कि खामद ने बीवी से पूछा, आपको कौन से रिश्ते प्यारे लगते हैं? उसने कहा, आपकी सास, आपका ससुर, आपके साले, आपकी सालियां। समझ आई कि नहीं समझ आई? आपकी सास, आपका ससुर, आपकी सालियां, आपके साले, तो ये प्यारे लगते हैं। लगता भी उनको यही है। अगर दूसरे लगने लग जाएं तो फिर इनकलाब ना घर में आ जाए, रहमत ना आ जाए। अब ना उसको पता है कि इसका नुकसान कितना है, ना इसको पता है इसका नुकसान कितना है। कई चीजें अनजाने में हो रही हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है असल में इसका नुकसान कितना है। जिहालत है। अब देखें ना, मौलवियों के घर बाकियों की निस्बत बेहतर होते हैं। उसकी वजह यह है कि कम से कम कुछ ना कुछ तो वो जानते होते हैं, कुछ ना कुछ तो। लड़ाई तो फिर ज़ाहिर है इस मुआशरे का हिस्सा है। वो तो बीवी पहले दिन से घर से सिखाया ही ये जाता है कि बाप शौहर की कदर नहीं करनी। पहला दर्स ये, क्योंकि माँ कदर नहीं करेगी तो बेटी ने देखना है, बेटी ने खाक करनी है कदर। उसने जो माहौल देखा है उसी पे अमल करना है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम अब वो जुमला, मेरे हुजूर का वो फरमान सुने, अब इसको जोड़ें इसके साथ, फिर मजा आएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया, मोहब्बत करने वाली औरतों से शादी करो। वो कैसे पता चलेगा कि जिनसे रिश्ता मांग रहे हैं क्या वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है? अगर वो करती है तो ये भी करेगी, अगर वो नहीं करती तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये करे। कोई इस्तेस्ना हासिल हो जाए तो अलग बात है, उसूल नहीं है। जो उसने घर में देखा है वही करेगी। मजलिस की तौसीर होती है, फिर वो जरासीम भी होते हैं ना, बीमारियां लग सकती है, तो ये भी बीमारी है ना सर, विरासतन चीजें आती हैं ना। और फिर उसके बाद रिश्ते क्या हैं? यही है ना, शौहर के ससुराल वाले और बीवी के भी ससुराल वाले, दोनों के ससुराल वाले हैं। हजूर ने क्या फरमाया? मेरे हजूर ने फरमाया, 3 बाप हैं बंदे के, वो मर्द हो या औरत। एक बाप जो हकीकी है, दूसरा बाप जो उस्ताद है, तीसरा बाप जो ससुर है। तीनों का एहतराम एक तरह से करना है, एक जैसा करना है।
एहतराम में तीनों बराबर है। अगर बीवी भी ससुर के साथ ये सलूक करे, बाप समझे, और मर्द भी अपने ससुर को बाप समझे, तो मामला तो मेरे ख्याल है काफी हद तक सुलझ सकता। वो उसको बाप का दर्जा नहीं देना चाहती, ये उसके बाप को अपना बाप का दर्जा नहीं देना चाहती, तो ये बुराइयां फिर जन्म लेती, यहां से फिर दूरियां पैदा होती हैं, फिर तबाही का शिकार होते हैं, घराने उजड़ जाते हैं, तलाकें इसलिए तो होती। तो बहन भाई के रिश्ते को मुलाकात करना, उनको तोहफे तहफ देना, गिफ्ट देना, ईदी देना, ठीक है ना, तो रवाज ना बनाए अपने हैसियत के मुताबिक, लेकिन ये खुशी के मौके पर कोई चीज देना, ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्पेशल मिलने जाना, इसकी बड़ी अहमियत है, स्पेशल मिलने की, स्पेशल मिलने जाना, फोन करना, राब्ते में रहना, वालिदैन के रिश्तेदारों से मिलना, उनके कजन्स के साथ ताल्लुक रखना, अपने कजन्स के साथ ताल्लुक रखना, मामू, चाचू, फिर ताया, फिर ये खाला, फिर फूफी, ये इनके साथ यही रिश्ते हैं। फिर दूसरा स्टेप इससे आगे के सेकंड कजन कह रहे हैं। दुआ है अल्लाह जल्ला मजदूहू अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना।